models, supporting model, collegial model, and system model. Yes, ma'am. Can anyone brief it? First of all, right from the definition of OB. Just one line I want. Definition of OB, its nature, and what else we discussed? All the models of OB. Right? Other Yes, ma'am. about discipline of Yes, OB. ma'am. And importance and need of OB also. Okay, who can brief it? 5 minutes. ma'am. Given to you. Yes. Ma'am, Very first of all, you taught us organization behavior, good. and we know that this is the combination of two words, that is organization and behavior. So it is Okay. made up of two words, that is organization and behavior. So firstly, we know the meaning of both of them. First is organization. Organization is a group of people who are collected to work for a common goal with a collective effort. And second word is that behavior. Behavior means, ma'am, verbal or physical response showed by a person as a consequences of the impact of his or her surrounding. And now, what is organization behavior by the different authors? So first of all, we know that the famous author whose name is Just author conclusion will be sufficient, Pratyay. yes. Just conclusion will be sufficient in your own words. Okay. And then after need and importance of organization behavior, that is skill Conclusion development. I am talking about. You didn't define organizational behavior. According to you, what is organizational behavior? Your conclusion of it. यानी आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से? आप तो ऑर्गेनाइजेशन अलग बताए, डिफाइन किए, बिहेवियर अलग डिफाइन किए. That's a conclusion. Yes, ma'am. Organizational Ma'am, it is the study of human behavior. Okay, in And organization, yeah, within organization. Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay. Proceed. A study about the behavior in organization. Yes, it is And correct. Proceed. I am telling you. ये बढ़िया. and third is knowledge about human behavior would be useful in improving an organization effectiveness. ये भी हो सकता है conclusion में. Okay. और उसके बाद मैम नीड है या importance of organization behavior है. Need I want someone else to say, Anisha? Yes, ma'am. And there are many needs like skill development. OB helps to enhance our skill development. It also helps us to understand the level of motivation and satisfaction level of employees. It also helps us to increase the goodwill of the organization. It also helps us to increase the optimum utilization of the resources. Very good. Now, what else I taught about discipline, Gaurav? Yes. Yes, ma'am. Psychology, learning, motivation. You have to say from psychology, we took these things. Ma'am, it is a science that seeks to measure, explain, and something change the behavior of human. In psychology, what we learned? Ma'am, it is a science that seeks to measure, explain, and something change the behavior of human. Okay, individual behavior we are talking about. Psychology, right? What else we took from psychology? What all things OB inherited from psychology? Ma'am, learning, motivation, perception, personality, attitude. Okay. Now, second discipline, Ritik. After psychology. Why are you making faces? What happened? You have not written anything about. No, ma'am. Why? Why, Ritik? You were there in the class, I suppose. In attendance, I can see yours. You were there or not? Huh? Say yes or no, Ritik. You were there in last. Yes, ma'am. Then what was the reason? Let me know if I can solve that problem. प्रॉब्लम बताइए क्यों नहीं लिख पाए ताकि सॉल्यूशन मिल पाए आपको. आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू. यू आर नॉट एट दैट एज कि मैं आपको स्कोल्ड करूं या डांटूं. मैं बोल रही हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ, शेयर करिए, क्या मैं सॉल्व कर सकती हूँ उसको. मैम कुछ कुछ पॉइंट छोटा था, कुछ कुछ लिखे हैं. तो मैं तो आपको पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन किया शायद डिसिप्लिन, और लिखवाया भी था मैंने.
अगर लिखना छूट गया था तो ये तो आपके पीपीटी में इंक्लूड है ही वर्ड फाइल में, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना? Yes, ma'am. दैट मीन्स आपके साइड से प्रॉब्लम है, यू हैवंट स्टडीड। यस मैम, पीडीएफ नहीं था मैम। आई टोल्ड यू टेक स्क्रीनशॉट। क्यों? मैं रीजन क्या है, जैसे पीडीएफ के बारे में कोई मैसेज भी किए थे भेजने के लिए, तो एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इकट्ठा भेजूंगी, क्योंकि इस बीच में जो भी अल्टरेशन रिक्वायर्ड होगा ना, एडिशन को सब्सट्रैक्शन आपके अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, उसमें मैं करती रहती हूँ जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। फिर जब खत्म हो जाएगा तब मैं भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है? मिडिल, किसी चैप्टर के मिडिल में भेजना है मतलब आधा अधूरा टॉपिक आपको भेजना, ठीक है? एक बार एक जगह रहेगा ना, एक चैप्टर एक जगह रहेगा, आपके लिए भी इजी रहेगा। नहीं तो पता चला चैप्टर का आधा पार्ट कहीं और है, आधा पार्ट कहीं और है, ठीक है? अब तक मैं वही करते आई हूँ सारे क्लास में कि एक चैप्टर का पीडीएफ एक बार में भेज दूंगी, ठीक है? चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं भेज दूंगी। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, लाइक हर क्लास को अगर आपको कवर करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कुछ डिस्कशन हो रहा है आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, और एक बार जब पीडीएफ मिल जाएगा आप वो सब डिलीट कर दीजिएगा, तो स्टोरेज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, ठीक है? अगर आपको क्लास के साथ चलना है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ऑलराइट? यस मैम। और फिर जब पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर तो आई विल सेंड इट। ओके अंकु, एंथ्रोपोलॉजी, ओके, सोशियोलॉजी इज लेफ्ट। व्हाट इज सोशियोलॉजी? Ma'am, sociology is study and relationship to social environment. Social environment and people's relation. Okay. Yes, ma'am. People and culture. What else we have inherited from sociology? Power, organizational culture, organizational structure. Okay. Come to anthropology, Abhishek. Hello, ma'am. Yes, Abhishek. Yes, ma'am. It deals with the study of human beings and their and their activity. I think your headphone is not working or what? Repeat once again. Yes, ma'am. Repeat once again. To learn about human beings and their activity. To learn about human beings and their activity. Okay, what else we have inherited? OB have inherited from this anthropology. No answer? Inherited in OB, ma'am, anthropology में organization structure. Okay. Anything else? और कुछ? ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिखे हैं तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मैंने कहा था, बाकी लोग क्या स्ट्रक्चर लिखे या कल्चर लिखे? मैम, कल्चर ही बोला मैम। कल्चर ही है ना, तो कल्चर ही होगा, तो आप स्ट्रक्चर बोल रहे थे, ठीक है? तो और क्रॉस कल्चरल एक्टिविटी भी इसमें इंक्लूड होगा, ये सब भी मैंने लिखवाया है। तो ये सारे इसके बाद आपका बच रहा है आपका मॉडल्स ऑफ organization behavior. Okay, this we will say. Komal, first one is for you. Yes, ma'am. Autocratic. Ma'am, autocratic managers will think and employees will execute in this autocratic model. Yes. Custodial, Sagar. Ma'am, in this managers start thinking about the security of the employee and and they try to motivate them to work in an efficient manner. Okay, so everyone is focused in this class. That means Uday, roll number 21. Why everyone's camera is off in this section? Roll number 21, 79, 36. See, if you will not interact, then to understand will be difficult. Understanding any of the topic will be difficult. And Ritik, where are you? Roll number 81, Ritik. Huh? Hello, दुकान में.
All right, Harsh, yes. First who was answering? Yes, Uday, custodial, and then Harsh, you answer. Third one. First Uday. I'm not it. I'm in third model. Yes. I'm written only third model. Okay, according to you, what is supportive? Motivating and inspiring leader. Okay, then Harsh, collegial model. Harsh, Yes, ma'am. collegial model. Yes, ma'am. The basis of this model is economic resources with a managerial. Don't read out. सब लोगों ने just ही बताया. मैं किसी को पूरा जितना मैंने लिखवाया उतना मैं पढ़ने नहीं बोल रही. सबका मैंने बताया कि की पॉइंट क्या है आपको याद रखना है. Key point, yes, ma'am. हाँ, की पॉइंट बताइए. कॉलेजियल में क्या था? Ma'am, employees को security and benefits dependence on the organization होता है, means. Rule 32. क्या ये सही है? No, ma'am. What Harsh is saying, is that correct? No, ma'am. No, ma'am. I am asking from rule 32. Class नहीं किए. Okay. The best excuse to give. Abhinav, your answer? कॉलेज, यस मैम, कॉलेजियल में होता है कि कोई बॉस नहीं होता, ना कोई सबऑर्डिनेट होता है, और इसमें एक साथ टीम वर्क किया जाता है. हाँ, तो मैंने याद रखने का क्या ट्रिक बताया. जैसे कॉलेज होता है तो सेम है ना प्रोनाउंसिएशन, कॉलेजियल. जैसे कॉलेज में सब लोग, यहाँ भी है कि सब लोग टीम की तरह काम करता है. जस्ट जो बॉस है, he will play the role of mentor as a guide. That's it. He is not a boss over there. Yes, that was collegial. एक और मैंने ऐड करने बोला था इसमें. सारे लोग कलीग होते हैं मैम. यस. Now only one model is left. That is system model. We will answer that. Rule 69. Your camera is also off. Rule 81, 79, 59, 77. You need to turn on your camera. Can you hear me? Yes, ma'am. यस मैम, आवाज आ रहा है. Yes, ma'am. Okay, Sakshi, you answer. System model is left. Hello. Yes. What is system model? Yes, ma'am. System model is that the manager has to see the emotional, has to deal with the employees in emotional way and motivate them to create optimism, hope, and trustworthiness. Very good. I am very happy with this batch. Happy with your performance. Thank you, in fact. So let's proceed now. So the next topic which we will be discussing is organizational behavior. Two main principles. ठीक है, organization behavior में हम लोग basically दो principle की बात करते हैं. वो दो principle क्या है? First, चूंकि यहाँ पे organization और people के बीच में बात हो रही है, ठीक है. Organizational behavior is all about studying of individual behavior. तो यहाँ पे सिर्फ दो जन का यहाँ पे role हो रहा है. One is person and another role is of organization. So here we are seeing nature of people and nature of organization. तो नेचर ऑफ पीपल में हम लोग क्या देख रहे हैं? नंबर वन इज इंडिविजुअल डिफरेंस. ठीक है, इन दिस वी हैव टू नो द इंडिविजुअल डिफरेंस. अब इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या आएगा? ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में डेमो में भी सर ने बताया था कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट है इन द टर्म ऑफ एज, ओके, इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस, हैबिट, नेचर, एटीट्यूड. यस और नो? तो इंडिविजुअल डिफरेंस वही जो पहले भी हम लोग डिस्कशन किए, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर एक की एबिलिटी डिफरेंट है, इंटेलिजेंसी अलग अलग है. तो सबको हम एक जैसे अगर डील करने लगे एज एन मैनेजर, अगर मैं सबके साथ एक जैसे पेश आऊंगी तो दैट विल बी रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू पर्सन आपको अपना बिहेवियर, आपको मीन टू से मैनेजर को अपना बिहेवियर चेंज करना होता है. ठीक है, सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज थिंग्स.
This individual difference is the outcome of a psychological aspect. So organizational behavior is a part of psychology. Yes. Next, an individual with psychological difference will show the same in his behavior pattern in an organization. Management, that means manager, have to behave differently with different person. So his knowledge, this knowledge is provided to management by the study of OB. ठीक है, तो ये सारा जो knowledge है कि हर इंडिविजुअल के साथ अलग तरीके से जनरली क्या करते हैं, मैनेजर भी आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग, यस और नो, उनका भी एक फिक्स बिहेवियर होता है. वो क्या करेंगे, अगर ओबी का नॉलेज नहीं है तो उनका अगर एक पर्टिकुलर नेचर है फ्रेंडली रहने का, तो वो सबके साथ फ्रेंडली ही रहेंगे. अगर उसका नेचर है सबको अगर एक तरीके से समझिए डोमिनेट करके रूल करने का, तो वो सबके साथ वैसे ही करेंगे. अब उसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में किसी को बात लगने का जिसका होगा आदत, ठीक है, अच्छा बॉस ने ऐसा बोला तो करने लायक होंगे तो भी नहीं करेंगे. ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी बहुत लोग थे वहां पे जो इस तरीके से बोलते थे कि अच्छा ऐसे बोले वो तो हम कर देते, लेकिन चूंकि सर ऐसे बोल दिए तो हम नहीं किए, तो ईगो पे लग जाता है बहुतों को. तो अगेन क्या चाहिए कि वो आपका एक जैसा एटीट्यूड, आप सबको नहीं कर सकते वैसे, आपको देखना होगा कि सामने वाला कैसा है, वो क्या प्यार से समझाने पे समझ जाएगा, या कोई कोई होता है डंडा से समझने वाला, तो डंडा से समझाइए, आप किसी का सैलरी कट कर लीजिए, ठीक है, तो सैलरी कट कर लीजिए, उसका असर होगा कि अरे भाई पैसा कट जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा. और किसी का ये एडवर्स काम कर सकता है कि पैसा काट दिया तो हम और काम नहीं करेंगे. ठीक है, तो सोचिए अगर ये नहीं पता होगा हम लोगों को बीइंग अ मैनेजर, तो इट विल बी टफ टू मेक पीपल वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और ऑलरेडी आप लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ के आए हुए हैं. व्हाट इज मैनेजमेंट? Ma'am, management is indispensable wherever human efforts are to be undertaken. Okay, anything else? Yes, ma'am. Management is the art of getting things work done by others. Exactly, we getting things, art of getting things. So it is an art. ठीक है, इसके लिए एक ये नॉर्मल सा चीज नहीं, इट इज एन आर्ट, इट इज एन स्किल कि आप दूसरे लोगों से काम करवा पा रहे हो. ठीक है, तो इसलिए आपका ओबी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है. तो नेचर ऑफ द पीपल में, तो फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू रीड इज इंडिविजुअल बिहेवियर. आई थिंक इट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल? Yes, yes, ma'am. Now let's proceed to second point. Now here we are talking about whole person. ये whole person का क्या मतलब है? Obviously हम लोग पूरे person को ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनर सा डिफरेंस है. ये क्या बात कर रही है, हो रहा है यहाँ पे कि फिजिकली जो हम देख रहे हैं पर्सन को, ठीक है, वो जो आपके सामने है वो तो ठीक है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है ना. व्हाट इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट? कहने का मतलब जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जो वो फैमिली या घर में छोड़ के आया हुआ है. ठीक है, कई बार होता है ना ऐसा, जैसे मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज में भी एक बार ये बताया था कि अगर मम्मी से झगड़ा करके हम लोग कॉलेज आते हैं तो हम लोग को लेक्चर में भी मन नहीं लगता. यस मैम. है ना, तो सेम वे होल पर्सन, यहाँ कहने का मतलब यही चीज है, होल पर्सन विद फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. जो फिजिकली वहां जो प्रेजेंट है वो तो है ही, वो तो देखना ही है, प्लस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी देखने का जरूरत है. अब जैसे बहुत एम्प्लॉयज होते हैं जो कैलिबर बहुत होता है, लेकिन वो फैमिली के प्रेशर से इतना उसके ऊपर प्रेशर है फैमिली का, या मतलब फैमिली प्रॉब्लम बोल लीजिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोल लीजिए, जिसकी वजह से कैलिबर होने के बावजूद वो काम नहीं कर पा रहा है. तो बीइंग अ मैनेजर आप उसको कैसे ईज फील कराएंगे? आपके पास उसके लिए क्या है देने को? ठीक है, तो वो चीज अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब यू आर कंसिडरिंग होल पर्सन, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. ठीक है, तो इस सेकंड पॉइंट में हम ये बात करते हैं. एन इंडिविजुअल इज अ होल पर्सन विद फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, देयरफॉर वी कैन नॉट डील विद पर्सन बाय पार्ट. ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते सामने जो प्रेजेंट का काम करना है, कैसे करवाना है वो आपके ऊपर. ठीक है, तो ये हम बस नहीं कर सकते. फिजिकली जो आपके सामने है एम्प्लॉय, बस वही सिर्फ हम कंसिडर नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव आल्सो एडेड an employee working in an organization has a lot of personal problems worrying him. It is not possible for him to perform the work by keeping away these problems at home and work efficiently with his physical capability alone. No one can separate the physical and psychological aspect and deal with individual. Hence, knowledge of OB and management has to be integrated, and the problem of an individual probed to find out remedial action to solve it, considering the individual as a whole person. Solving the problem will become quite easy if the relation between OB and management, यहाँ management कहने का मतलब अगेन मैनेजर ही है, OB and management are well understood by the manager. ठीक है, OB और मैनेजमेंट का जो रिलेशन है या OB का अंडरस्टैंडिंग अगर मैनेजर में है, तो दिस प्रॉब्लम विल बिकम इजी टू सॉल्व.
All right. So this is what we Yes, mean yes, by whole person. Yes, any problem? Yes, ma'am. बोल रहे थे या excuse me, ma'am बोल रहे थे? बस मुझे yes, ma'am बोल रहे थे. Okay then. Yes, ma'am. So let's proceed now. Third point is caused behavior. Now, what is caused behavior? This is a reaction in an individual due to some needs and want, which he has to satisfy. ठीक है, हम लोग को यहाँ पे employees की जरूरतों का ध्यान देना होगा. यानी financial in this जरूरत की अगर मैं बात करूं, तो it can be both financial or non-financial. ठीक है. This caused behavior has to be regulated by proper motivation. Hence, the management and OB have to work together to understand the exact nature of the need of an individual to be satisfied and desired incentive to be provided. अब इसका मैं example के through अगर मैं समझाऊं, हर जगह example add करना possible नहीं था. तो अगर मैं caused behavior को अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए किसी की इच्छा होती है कि भाई 2 साल के अंदर मेरे को गाड़ी लेना है. ठीक है. अब गाड़ी लेना है तो being a manager आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे? देखो, अगर इतना टारगेट पूरा कर लोगे तो इतना सैलरी मिलेगा. ठीक है. इतना तो सैलरी तो मिलता ही है, प्लस इतना इंसेंटिव मिलेगा. तो वो क्या, हाँ, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉइज को. ठीक है, ये तुम्हारी जरूरत है. तो ये कब पता चलेगा? जब उसके नीड्स और वांट के बारे में आप पता करेंगे, आपका रिलेशन अच्छा होगा, आपको उसका जरूरत पता चल गया. अब उसकी इंडिविजुअल जरूरत के अकॉर्डिंग आपको मोल्ड करना है. तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे मैनेजर हो सकते हैं. ठीक है. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप के पोजीशन पे हैं, तो हर जगह वही चीज है कि हर सबको एक तरीके से नहीं ट्रीट करेंगे, उसके नीड एंड वांट को देखेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो थर्ड में हम लोग काउज्ड बिहेवियर की बात करते हैं कि उसकी जरूरत क्या है और जरूरत के अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट करना और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ उसको एसोसिएट कर देना. फिर वो अपने आप में ही मोटिवेटेड हो जाएगा कि चलो भाई 2 साल के अंदर मेरे को इतना करके देना है, कार लेना है मेरे को, है ना. तो ये अगर हो रहा है तो मतलब क्या, उसका अपना जो इंटरेस्ट है वो भी पूरा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो भी पूरा हो रहा है. यस और नो? So this is what we say, what we call in this caused behavior. Understood over here till third Yes, point? Now let's proceed to fourth point, that is human dignity. अब यहाँ word ही बता रहा है dignity. बहुत लोगों को क्या होता है, सैलरी से या इंसेंटिव से उतना मतलब नहीं होता है जितना उसको अपने पोजीशन, अपने डिग्निटी, अपने रिकॉग्निशन से मतलब होता है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन में एक उसका रुतबा होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. डिफरेंट पर्सन का ये डिफरेंट एस्पेक्ट होता है. तो आपको समझना है कि वो किस एस्पेक्ट पे ज्यादा झुकने वाला है. अंडरस्टूड? तो पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव सम स्ट्रॉन्ग बिलीव्स एंड पोजेस सर्टेन वैल्यू सिस्टम इन देयर ओन. लेट इट बी मैनेजर और अ वर्कर, ईच पोजेस द डिग्निटी ऑफ हिज पोजीशन. ठीक है. जिस पोजीशन को वो होल्ड कर रहा है उसका डिग्निटी है, उसका वैल्यू है, एंड द रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. एन इंडिविजुअल हु पोजेस अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम may not compromise it. Simply as such, he has to be given the deserving value and recognition. Related approach of OB and management will be of great help in such a situation. ठीक है. यानी आप यहाँ रिकॉग्निशन का जो भूखा होता है उसको आप किस तरीके से मोल्ड कर पाएंगे, किस तरीके से मैनिपुलेट कर पाएंगे. एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, OB इज नॉट अबाउट मैनिपुलेटिंग पीपल. ठीक है. ये सब में स्किल पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप ही इसी चीज के लिए हुआ है कि वो प्रॉफिट कमाए, और वो प्रॉफिट वो अकेले नहीं कमा सकता, उसके लिए पीपल की जरूरत पड़ती है. ठीक है. इसीलिए ये सब स्किल का सीखना जरूरी है. तो मैनिपुलेटिंग, यहाँ पे आपको नेगेटिव मत सोचिए कि हम लोग तो यहाँ मैनिपुलेट करना सीख रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं सीख रहे. ये सारा जो स्किल है हम लोगों को नहीं पता होता है. और ये चीज ऐसा नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करने के बाद ही आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे. आप ऐसे भी इन जनरल प्रैक्टिस में कर सकते हैं ताकि आपका जो रिलेशनशिप है आपके सोसाइटी में उसको भी आप इंप्रूव कर सके. ठीक है. जैसे मैंने कहा था ना, कोई पर्सन आपके से रूड है तो आप ये यहाँ पे पॉज करके सोचिए कि रूड है आखिर क्या रीजन है, दिमाग में उसके चल क्या रहा है, क्यों रूड हो रहा है वो मेरे से. ठीक है. किसी के साथ आपका ज्यादा बनता है तो क्यों बनता है, उसके पीछे भी रीजन होता है. और किसी के साथ नहीं बनता है तो यहाँ झगड़ने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे मेरे को ये सोचना है कि आखिर क्या रीजन है जो नहीं बन रहा है. सो दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग इन ओबी. तो ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमारा एक जनरल एस्पेक्ट में भी ये सीखना बहुत जरूरी है, ये स्किल. ठीक है. ताकि हमारा एक तरीके से देखिए रिलेशन अच्छा रहेगा तो आप हैप्पी फील करेंगे, और आप हैप्पी फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's proceed now. Not only in the field of organization. Yes, Pratya.
हो गया मैम, मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन में ही ये जरूरी नहीं है, हर सेक्टर में हर जगह पे ये जरूरी बिल्कुल, ये है, अपने वही बोलना प्रैक्टिकल चाहता लाइफ में भी ये जरूरी है, ये सारा चीज Yes. सीखना, ठीक है। नाउ नेचर ऑफ पीपल इज डन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन को कैसे क्या करना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन में देखिए नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज टू एस्पेक्ट। वहां इंडिविजुअल में तो बहुत सारा एस्पेक्ट पढ़ने को मिला, ठीक है, पीपल में तो बहुत सारा एस्पेक्ट पढ़ने को मिला, यहाँ पे बेसिकली दो ही एस्पेक्ट है, वन इज सोशल सिस्टम, सेकंड इज म्यूचुअल इंटरेस्ट। सोशल सिस्टम की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय सोशल एंड साइकोलॉजिकल नॉर्म्स, नॉर्म्स मींस नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन, अंडरस्टूड। सो पीपल हैव साइकोलॉजिकल नीड्स एंड मोटिव्स, एट द सेम टाइम दे आर बाउंड टू शोल्डर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे सीएसआर कितने लोग सुने हुए हैं सीएसआर के बारे में? CSR. Anyone heard about CSR, social responsibility, corporate social responsibility? सरस्वती पूजा में तो इस बार आप लोग थे, आई सपोज सेकंड Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आपने ये तो सुना होगा ना कि इस फंड का जो भी जमा किए हुए हैं फंड, इतना अमाउंट सीएसआर के लिए जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए Yes, जाएगा। ma'am. सुने थे Yes, हम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूछने का कोशिश नहीं कि ये सीएसआर है क्या, किसको देना होगा पैसा? वेलफेयर के लिए, हाँ, वेलफेयर NGO में मैम। यही चीज है कि जो आप होते हैं सम्मान। हाँ, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली यही है कि आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं तो सोसाइटी की तरफ आपका सर्टेन ऑब्लिगेशन होता है जो आपको पूरा करना होता है, ठीक है। या तो आप सर्टेन इंडस्ट्री सेट किए हैं तो पॉल्यूशन की वजह से आपका सोसाइटी हैम्पर हो रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए वो रहने का जगह ऑक्यूपाई हो रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सोशल ऑब्लिगेशन जो आपको करना पड़ता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। आपका जो एक कहते अगर कहा जाए जो होना चाहिए डिजायर, दैट विल कम इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका मतलब लॉ में मैंडेटरी कर दिया गया है कि सर्टेन अमाउंट अगर आप कमा रहे हैं तो आपको मतलब देना ही देना होगा सोशल वेलफेयर के लिए। अगर आप लॉ की बात करें तो कोई आप नॉलेज के लिए जान सकते हैं, दो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओबी में कहीं है नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में जरूर मिलेगा, किसी ना किसी चैप्टर में। क्यों आपको इनफैक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन पढ़ा रहे हैं? शिल्पी मैम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सीएसआर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें आप लॉ वगैरह का सारा कुछ पढ़ेंगे, लाइक 3 साल का जितना प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसका एवरेज निकाल के और 2% हम लोग को देना होता है सोसाइटी के लिए। तो उसका फिर एप्लीकेबिलिटी होता है कि कितना कमाने वाली इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको देना होगा। उन लोगों के लिए कंपलसरी है और बाकी सबके लिए वॉलंटरी है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो यही चीज हो गया। तो आपको बीइंग ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आपको ये सोशल सिस्टम समझना होगा कि आप एक सोसाइटी में, आपका सोसाइटी की तरफ आपका एक रोल है, ठीक है। और सेकंड इट इज टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल इंटरेस्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट करने का मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला और ऑर्गेनाइजेशन की इंटरडिपेंडेंट की बात हो रही है, ठीक है। यानी जो लोग काम करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको आपकी जरूरत है लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है फॉर अचीविंग इट्स गोल, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल म्यूचुअल इंटरेस्ट। यानी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए पीपल की, और पीपल को जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन की अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात आ गई। Yes, ma'am. तो ये दो सिस्टम है आपका, ये दो प्रिंसिपल है जो आप लोग को ध्यान रखना है। तो ओबी का बेसिकली यही दो प्रिंसिपल है, नेचर ऑफ पीपल एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So that was all about principles. So again, this topic is done. So now let's proceed on importance of OB. ठीक है, थोड़ा attentive रहिएगा, क्वेश्चन कभी भी किसी के पास आ सकता है, ठीक है। That's why I always, हाँ मैम म्यूचुअल इंटरेस्ट एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। म्यूचुअल पहले मतलब क्या होता है? आपसी इंटरेस्ट। आपसे, यस मैम। जी, आपसे क्या इंटरेस्ट है, आपको मुझसे क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। ये चीज मेरे को देखना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने वाला जो एम्प्लॉयर है और काम करने वाला जो एम्प्लॉय है, दोनों को आपस में एक दूसरे के प्रति कुछ तो इंटरेस्ट है, कोई तो फायदा है एक दूसरे से। तो वही फायदा हम लोग को चेक करना है। जैसे पीपल को क्या फायदा है कि मेरे को रोजमर्रा जो मेरा लाइवलीहुड है उसी ऑर्गेनाइजेशन से चलने वाला है। तो लाइवलीहुड से कैसे चलने वाला है? मेरे को सैलरी जो मिल रहा है, घर लेके आ रहे हैं, घर का खर्चा चल रहा है, यस और नो। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है कि मेरे को गोल को अकम्प्लिश करने के लिए अकेले तो हम लोग प्रॉफिट कमा नहीं सकते, नो मैम, एम्प्लॉय की जरूरत है, एम्प्लॉइज की जरूरत है। तो वो एम्प्लॉइज वो काम करके देंगे,
तो वो गोल तक पहुंचने के लिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है। अंडरस्टूड? दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल सही, इंटरडिपेंडेंट की बात हो रही है यहाँ पे कि पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से ये इतना जानने के बाद ये थोड़ा अब हो जाएगा आपके लिए एक खुद से बनाने वाला पॉइंट। ठीक है, 2 मैं ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट यू थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? Ma'am, we can increase the efficiency of the work by organizational behavior. Correct. Understanding the level of motivation and satisfaction of the employee. Level, very good. Or I'm improving people skill. yes, improving people's skill. Okay, this will again another point of importance of OB. So these all points you can. Yes, Anku. To create healthy and ethical environment in the organization. Healthy and ethical environment also. Yes, all these points you can write. So you can write by your own, but here what point I have added. First one is create sustainable competitive advantage. Now what is sustainable competitive advantage? Sustainable is another word. Competitive advantage is another word. What do you mean by competitive advantage? और ये टर्म आपको हर जगह मिलेगा। अभी आप BBA सेकेंड में हैं, आपको BBA थर्ड में मिलेगा, HRM में, HRM थर्ड में आप पढ़ेंगे, फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फोर्थ में आप पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा। तो ये टर्म तो समझ लीजिए आपके मैनेजमेंट का एक तरीके से सूत्र है, ठीक है, जो हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एनी आइडिया? Yes, ma'am. It allow a business to be more successful than its competitor company. It allows, but what it is? It allows to be much to be more successful. Okay, but what is this competitive advantage? I'm advertising a product. Yes. For a price then lower than a similar. Repeat. Ma'am, advertising a product. It is not about just advertising. Okay, let me explain that. Means you haven't heard before. To survive in the market. Yes. More selling, ma'am. More profit. More selling वगैरह नहीं, एक ऐसा देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, लेट मी टेल फर्स्ट, लिसन फर्स्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि आप पे कौन सा ऐसा कैलिबर है जो दूसरों के पास नहीं है, दूसरे से आप अपने आप को कैसे अलग बना के रखें, ठीक है, और अलग इन द सेंस जो वैल्यूएबल हो, ठीक है, रेयर हो, इनइमिटेबल हो और नॉन सब्स्टिट्यूएबल रिसोर्स आपके पास जो भी है वो आपको आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या है? ऐसा स्किल, ठीक है, या ऐसा कुछ भी रिसोर्स जो बाकी के पास ना हो, ठीक है, वो आपको डिफरेंट बना रहा है बाकी से, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका कोक का तो कितना सारा इंडस्ट्री है आपका, कोक का, कोका कोला है, कोक का आपका पेप्सी है, थम्स अप है, बट स्टिल कोका कोला इज द लीडिंग कोक इंडस्ट्री in comparison to Pepsi or Thumbs Up. Why? Yes. Because it hold that competitive advantage. वैसा टेस्ट, ठीक है, बाकी में नहीं मिलता है, पेप्सी में नहीं होता है। दो बहुत सिमिलर है पेप्सी और थम्स अप, लेकिन फिर भी कोका कोला और पेप्सी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, डिफरेंस है, ठीक है। तो कोका कोला अभी भी कोक के इंडस्ट्री में लीडर है, मार्केट लीडर है वो, कारण क्योंकि वो उसका अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना के रखा हुआ है। अमूल की अगर बात कर ले, ठीक है, अमूल का जो कंपटीशन है सुधा के साथ है, और कौन कौन सी कंपनी है? सुधा है, आशीर्वाद में सब। आशीर्वाद का दूध कब आ गया भाई? दूध आता है, आता है, अच्छा मुझे नहीं पता है। आशीर्वाद का आटा पता है? यस मैम, आता है। मदर डेयरी, दूध आता है मैम, अच्छा राज है, आता है मैम, आशीर्वाद आता है। अच्छा होगा, अच्छा होगा, मैं कभी यूज नहीं की हूँ, आप लोग की साइड आता होगा। तो ठीक है, इतना सारा है ना कॉम्पिटिटिव मार्केट में, लेकिन स्टिल अमूल इज लीडिंग। व्हाई? ही हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो बाकी लोग नहीं इमिटेट कर पा रहे हैं, नहीं उसको मतलब काफी रेयर है। जैसे मान लीजिए उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? उसका लास्ट सप्लाई चेन, ठीक है, बहुत बड़ा सप्लाई चेन है उसका, राइट, उसका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो पीछे भी रहा है और आगे से डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है बहुत बड़े स्केल पे। तो बाकी लोग, इवन अब जैसे ओला की बात करें,
तो ओला जैसा कोई और भी बहुत गाड़ी वगैरह लेकर के निकल सकते हैं, लेकिन वो जो नेटवर्क ओला का है वो नेटवर्क कहाँ से ला पाएंगे आप? यस नो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है जो बाकी लोग के लिए इमिटेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने जैसे लता मंगेशकर का लिखा हुआ है, एवरीवन नोज दैट द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर इज वेरी मेलोडियस, इट इज वैल्यूएबल, ठीक है, रेयर है और डिफिकल्ट टू इमिटेट, इतना इजी नहीं है, जबकि वो इतनी पुरानी है और इतने कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, नेहा कक्कड़ तक आ चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी भी लता मंगेशकर का जगह कोई नहीं ले पाया है, उनका एक अलग पोजीशन है। ठीक है, तो वही होता है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि ऐसा आपके अंदर वैसा एडवांटेज जो दूसरा कोई आपका पोजीशन नहीं ले पाए। एंड इंश्योर कि अगर ये सारा टर्म नहीं रहेगा, इसीलिए मैं हाईलाइट कर दी हूँ, वैल्यूएबल, रेयर, इमिटेबल और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल अगर नहीं होगा तो आप कुछ टाइम के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपका काम आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही चीज अगर कोई और कॉपी कर लेगा तो उसी टाइम आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। यस, वो कहने का मतलब तो वैसा तो चेंज तो हो सकता है ना, कॉम्पिटिटिव करेगा, इसके लिए उससे अगर जागरूक अच्छा आ गया कराना होगा। क्या 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 मैम, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव आया मार्केट में, वो उससे बेहतर हो गया तो वही चीज तो मैं बोल रही हूँ ना कि इनइमिटेबल होना चाहिए, नकल करना इतना इजी नहीं होना चाहिए, वो रेयर होना चाहिए, तब वो कहलाएगा मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर वो नकल करने लायक है और नकल करके कोई और आया, तब उसी टाइम आपका वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो गया, तब आपको किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में सोचना होगा। ठीक है, अगर वो नकल हो गया तो आप वही मार्केट से आउट हो गए। अंडरस्टूड? तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते ही उसी को है जो कि वैल्यूएबल हो, रेयर हो, इनइमिटेबल हो और नॉन सब्स्टिट्यूएबल रिसोर्स हो। ठीक है, तो ये होता है, तो वही चीज इंपॉर्टेंस है कि आपको ओबी का अगर नॉलेज हो गया तो आप एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ऑलराइट, ये है पहला इंपॉर्टेंस। बाकी आप लोग जो बोले वो तो होगा ही, ये पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए और मैंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल कंपोनेंट, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स, जितने मार्क्स का पूछा जाएगा उस अकॉर्डिंग आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ एग्जांपल है, राजीव इज नॉट एबल टू गेट रिजल्ट्स इन सेल्स एंड फाइंड द जॉब वेरी स्ट्रेसफुल। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट में यहाँ बताया गया है कि जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंसान का यहाँ लिया गया है राजीव के बारे में, कि वो सेल्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाने की वजह से काफी स्ट्रेसफुल है। ठीक है, तो रीजन अब बॉस क्या सस्पेक्ट कर पा रहे हैं कि वो इंट्रोवर्ट नेचर का है, और नो डाउट सेल्स में इंट्रोवर्ट तो नहीं चलने वाला है। तो अब ये क्या मिस्टेक हुआ इनके साथ, ये सबसे पहले एक सिलेक्शन के टाइम ही इसको साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना चाहिए। वो भी पढ़ने के बाद पहला सॉल्यूशन कि आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना चाहिए था। ठीक है, बिफोर सेलेक्टिंग हिम फॉर द जॉब। ठीक है, दिस सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड। ठीक है, फर्स्ट आपका रीजन या फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन, अगर सिलेक्शन हो भी गया तो वी कैन स्टिल कंफर्म हिज पर्सनालिटी ट्रेट एंड शिफ्ट हिम टू अनदर जॉब प्रोफाइल वेयर ही कैन सक्सीड। ठीक है, अगर हमको पर्सनालिटी ट्रेट मतलब व्हाट इज ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल गया तो हम क्या कर सकते थे, राजीव को ठीक है सेल्स का जॉब नहीं दे करके कुछ ऑपरेशन का काम दे देते। ठीक है, एडमिन का सर्टेन काम दे देते। ठीक है, इंट्रोवर्ट है, बोलने पसंद नहीं है, तो वो चलो लॉगिन वगैरह का काम कर लेगा। ठीक है, सिस्टम पे काम कर लेगा। ठीक है, तो यही चीज है, वो भी इसीलिए जानना जरूरी है कि किस पर्सन कौन काम के लायक है, वो चीज हम आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि सेल्स में काम नहीं कर पा रहा है तो किसी और प्रोफेशन पे, किसी और प्रोफाइल पे वो काम नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, और थर्ड अल्टरनेटिव जो और थर्ड अल्टरनेटिव जो आपके पास अवेलेबल है, दैट इज टू ट्रेन हिम टू चेंज हिज बिहेवियर। ठीक है, और इंट्रोवर्ट को चेंज करना उतना टफ नहीं है। ठीक है, इंट्रोवर्ट को हम सर्टेन ट्रेनिंग के थ्रू इसको कर सकते हैं। जैसे अभी कॉलेज में ही आपका ये इतना कुछ जो जीडी होता है, स्पीच कंपटीशन होता है, ये सब के थ्रू आप अगर इंट्रोवर्ट नेचर के हैं तो आप इसको खत्म कर सकते हैं। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है ताकि वो आपको बोलना सिखाया जाए, कम्युनिकेशन सिखाया जाए। सेल्स में या आपको रोल प्लेइंग के थ्रू आपका इंट्रोवर्ट वाला नेचर को चेंज किया जाता है। ठीक है, रोल प्लेइंग टेक्निक होता है जो ट्रेनिंग में आगे आप पढ़ेंगे एचआरएम में नेक्स्ट सेमेस्टर में, रोल प्लेइंग। तो रोल प्लेइंग में क्या होता है कि हम लोग जैसे बोला जाता है ना, आप लोग कर भी रहे थे इनफैक्ट, पेन को सेल करके बताओ। ठीक है, तो पेन को सेल करके बताओ, या किसी चीज को, ये आपके सामने है डायरी को सेल करके बताओ, जो आपके सामने उसको सेल करके बताओ। तो ये सब क्या है, रोल प्लेइंग है ना। ठीक है, जैसे वो कन्विंस किया आप सुने,
बीइंग ए मैनेजर आप उसको बताएंगे कि इसमें ये ड्रॉबैक था, इसको आपको इस तरीके से सेल करना चाहिए था. दिस इज व्हाट वी कॉल रोल प्ले. ठीक है, तो ये अगेन बेनिफिट हुआ इंडिविजुअल कंपोनेंट का. ऑल राइट, so this illustrate that OB is important to accomplish the following. What all things? Identify the underlying reason for poor or non-performance and enable change. ठीक है, जैसे यहाँ ऊपर हम देखें कि वो सेल्स में अच्छा काम नहीं कर पा रहा था, तो हम लोग रीजन आइडेंटिफाई करने में हेल्प हुआ. ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस का रीजन आइडेंटिफाई हुआ और क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर पाए हम. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट हेल्प अ पर्सन टू मॉडिफाई हिज और हर बिहेवियर टू अचीव फुल पोटेंशियल. ठीक है, ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फुल पोटेंशियल वो गेन कर पाए. ठीक है, बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट मोटिवेट्स अ पर्सन. नाउ लेट मी क्लियरिफाई, पोटेंशियल यहाँ मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस, दोनों में डिफरेंस पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल? मैम पोटेंशियल आपके अंदर कितनी क्षमता है, और मैम परफॉर्मेंस की वजह है कि आप लोग कितनी क्षमता है फ्यूचर में काम करने की, दैट इज पोटेंशियल. आगे चल के ये लड़का कमाल करने वाला है. ठीक है, दैट इज पोटेंशियल. और परफॉर्मेंस, जो काम आपको करवा के चेक किया जा रहा है कि कैसा परफॉर्मेंस है. लाइक मैं आपको कंपटीशन करवा के, स्पीच कंपटीशन में भेज के आपका परफॉर्मेंस देख करके जो मैं जज कर रही हूँ, दैट इज परफॉर्मेंस. ठीक है, और अभी आपका एटीट्यूड चेक करके मैं अगर फ्यूचर को कर रही हूँ, हाँ ये बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा टीम हैंडल कर सकता है, दैट इज पोटेंशियल. ऑलराइट, क्षमता बताना है. हाँ, क्षमता बताना. ठीक है, इन वन वर्ड वी कैन से कि इसकी क्षमता क्या है, फ्यूचर में काम क्या कितना कर सकता है वो. ऑलराइट, तो ये, हाँ, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू. म्यूट कर लीजिए जिधर से आवाज आ रही है. तो इट इज टॉकिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर. ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट हो गया इंडिविजुअल कंपोनेंट. नेक्स्ट वन इज ग्रुप और टीम कंपोनेंट. इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप और टीम कंपोनेंट, आई थिंक मेरा टाइम पे नजर गया, 50 हो चुका है.